I come from a poor family. This hotel that we're sitting in, Taj Mahal Hotel, my first job was that of a bellboy and I used to lift bags. And while I did that, I did my graduation by correspondence in which I got 3rd division. So I have academically nothing to talk about. But I come from the school of life. I have seen poverty and seen hunger firsthand. So when the reforms happened in India, rising tide lifts all boat. My boat also got lifted. I got into computer industry and so there was no looking back. Then I started Scotch Consultancy Services, 1997. That was the time we used to sell in India this 200 million middle class story. Because the economy was just about opening up. So we used to say that 200 million Indians will drink a bottle of Pepsi each in a week, and then they'll buy one television in 7 years, and they'll buy one PC in 5 years, and therefore you will have a 10% market share, and very large numbers used to be presented. But everything would happen 3 years later because market development and time. But soon those 3-4 years were over and those numbers were nowhere happening. So just out of sheer curiosity as to why this large company buy so little, it was the year 2000 that we started traveling across the country. We would go to back and beyond of nowhere, places like Majuli in Assam, Uttarkashi in Uttarakhand. We would travel to these places, talking to people, like focus group discussions कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, what is working, what is not working, and we would make films out of that. So we were making documentary films and then we would come back and we would tell the policy makers. I'll give you an example. Like we went to a place in Habra when there was communist rule in Calcutta. We saw a telemedicine center and we saw the life of a child being saved using telemedicine. I came back and I told the chief minister, then that was I think Mr. Budhiji Bhattacharya. I said, God's blessings be added to your work, which is a very inappropriate thing to say to a communist, but I said it nevertheless. And I said, see, this is such a wonderful scheme, but the problem is, by chance there was a doctor in Calcutta who was available on telemedicine. We ordered that a duty roster be created. Similarly, we went to Majuli and we saw this very good computer literacy program and we met a tribal girl. And she said she wanted to be an air hostess. So we said, why? Surprised that she even knew what an air hostess was. And we said, so but that you have to speak in English. Why are you learning computers? She says, because we don't have an English teacher and we are using these multimedia CDs to learn English. Then I came back and Gogoi Sahab was the CM of Assam and I told him that it's such a wonderful scheme, but in Majuli you get electricity barely 2 hours a day. So he immediately ordered for all such computer labs, generator we provided. So we found that these little visits were actually creating a policy change. Yes. So we started documenting them from a sociological perspective. So even the politicians who do not understand statistics and data and so on and so forth understand people very well. So if you tell them people stories, they can understand and relate. So this is how we started doing this. Then collation of all this started becoming books, and more people started joining in. And from day one, we also do these conferences, and we are on the 99th one shortly. And in our conference, you'll find people from the grassroots, ministers, bureaucrats, all of them, all the stakeholders are together and discussing openly. Yes. Economics policy अलग चलती थी, governance अलग चलती थी. Governance reform का economics से कुछ लेना देना नहीं था. तो वही प्रिंसिपल जो है 2014 के बाद शुरू हुआ. काफ़ी चीज़ें गवर्नेंस में रिफॉर्म हुई, जैसे जनधन आधार मोबाइल आया, टेक्नोलॉजी आई. इसके सबके रहते क्या हुआ, दो चीज़ें. एक तो जो हमारा क्रेडिट गैप बहुत ज़्यादा था, वो रंगाराजन साहब की रिपोर्ट आई थी, 12% 2014 से लेके 2022 तक रिड्यूस हुआ. तो मतलब जिन लोगों को क्रेडिट का एक्सेस भी नहीं था, उनको वो एक्सेस मुहैया हो गया. दूसरी चीज़ ये हुई कि जो फाइनेंशियल डीपनिंग है, जो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, मार्केट की डेप्थ है, पेंशन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये भी बहुत बढ़ गई, जो कि 2014 में 19 थी और 2022 में जाके 35 के करीब फाइनेंशियल डीपनिंग इंडेक्स हमारा हो गया. तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हैं, आप स्टेटिस्टिकल डेटा लेके कोई भी इकोनॉमिस्ट इसको कैलकुलेट कर सकता है. पर उसका ज़मीन पे क्या फ़र्क पड़ा? उसके ऊपर ज़मीन पे ये फ़र्क पड़ा कि एक तो बड़ी अच्छी योजना आई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि स्पेसिफिकली MSMEs को टारगेट करती थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के. तो इसके रहते हमने पहली रिपोर्ट जो जब 2 साल की होगी मुद्रा योजना निकाली थी, उसमें हमने कैलकुलेट किया कि एक लोन अगर 90,000 रुपये का होता है, एक रोज़गार पैदा होता है. वो जो है आज हो गया है 85,000 रुपये में एक रोज़गार मुद्रा योजना से होती है. तो उसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कितने खाते खोले, कितना लोन निकला, तो वो जो आंकड़ा आता है वो करीब 3.15 करोड़ का आता है. उसमें अगर आप 20% मोर्टेलिटी रेट ले लीजिए कि इतने धंधे बंद हो गए, तो करीब 2.5 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हर साल जनरेट हुई है, यानी 25 करोड़.
अब नॉर्मली क्या है कि जो हमारा तंत्र है, जो रिपोर्ट वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, इनको माइक्रो फाइनेंस समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि 80,000 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, हंसी ठट्ठे में ही उसको उड़ा देते हैं। तो हमने 80 केस स्टडीज़ आज रिलीज़ करी है, जो कि 4 स्टेट्स से हैं, उड़ीसा की है, वेस्ट बंगाल की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की, कि किस टाइप के रोजगार लोग कर रहे हैं। कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई स्क्रैप डीलर है, कोई पॉटरी मेकर है, कोई चूड़ियाँ बना के बेच रहा है, कोई क्रॉप मर्चेंट है, और उन्होंने कोई ग्रॉसरी स्टोर है जिसने ग्रॉसरी बेंगलुरु में डिलीवर करने के लिए 15 लोग रखे। तो इस टाइप के रोजगार तो हमारी तो वोकेबलरी में ही नहीं आते, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये उस बात का जवाब है कि 80,000 रुपये में आप क्या कर सकते हैं। तो 80,000 रुपये में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। काफ़ी आपको इनके एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये संख्या 2.52 करोड़ पर ईयर है। दूसरी चीज़ जो है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और फोकस्ड रूरल डेवलपमेंट सेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, आवास योजना आ गई, स्वच्छ भारत अभियान आ गया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिहाड़ियाँ जनरेट हो रही, लेबर डेज, पर्सन डेज जनरेट हो रहे हैं, और उसके सारे आंकड़े सरकार के वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। तो इस चीज़ को देख के लोग अनदेखा करते थे कि ये रोज़गार थोड़ी है। तो हम बोलते हैं, हम उसको भी रोज़गार मानते हैं, स्वरोजगार मानते हैं, और उसको जितने मैन डेज हैं या पर्सन डेज हैं, जितनी दिहाड़ी हैं, उसको हम 260 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 साल बनता है। तो उतने मैन ईयर्स अगर आप देख लें तो 2 करोड़ के करीब पर्सन ईयर्स हर साल ऐड हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ फिर एक बार जो है सागर मीडिया के हेड सागर जी जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पर ताज मानसिंह होटल में पहुँचे। एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत से मुद्दों को लेके समीर कोचर जी ने, जो चेयरमैन है स्कोच के, बहुत सी बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से जीडीपी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, बेरोजगारी को, रोजगारी को लेके, जिस तरह से कि 80,000 रुपया शुरू करते हैं, कोई भी चाय की दुकान आप खोल लो, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 14 के बाद रोजगार जो है वो बहुत लोगों को मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या ये समीर कोचर जी ने जो बातें बताई आज जो कॉन्फ्रेंस की, किस मायने में आप इसको देखते हैं? देखो, जो समीर कोचर हैं, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह ये बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया है। इस शोध कार्य में इन्होंने ये बताया है कि जो हर साल 2014 से लेके 2024 तक जो एम्प्लॉयमेंट मिली है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो, चाहे इंडिपेंडेंट की वजह से हो, चाहे वो बैंकों के लोन की वजह से हो, वो कम से कम 3 करोड़ के आसपास इन्होंने बताई है कि हर साल अगर 3 करोड़ हुई है तो 10 साल में कोई 25-30 करोड़ आदमी एम्प्लॉयड हुआ है। इससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से एक तो गरीबी का जो स्तर है वो कम हुआ है और एक खुशहाली आई है। चाहे आप छोटा व्यापार करें, जब आदमी में आत्मविश्वास आ जाता है व्यापार करने का, तो उसके अंदर एक आभा जो है वो अच्छी हो जाती है, और उसके बच्चे जो हैं उनमें भी एक जोश की भावना आ जाती है, और वो कुछ ना कुछ लाइफ में करते हैं। तो ये इनका बड़ा अच्छा शोध कार्य है, और इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें ये बताई हैं कि इन्होंने छोटे तबके को और छोटी सिटी में जाके, जैसे वृंदावन हो गया या वेस्ट बंगाल का कोई छोटा शहर हो गया, और ग्राउंड पे क्या हो रहा है वहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू लिया, जिससे ये प्रैक्टिकल इन्होंने बताया कि देखो मैंने ये ग्राउंड पे जाके स्टडी की है, और इसकी रिपोर्ट इन्होंने दर्ज की। इस रिपोर्ट से इन्होंने बोला कि मैं जीडीपी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, मेरा ख्याल है कि जीडीपी में भी इसका असर होगा। जब आप देखें कि ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ आदमी और आपकी आबादी 140% है, तो 1-2% या 0.5% का फ़र्क तो जरूर पड़ा होगा। दूसरी बात यह है, इन्होंने जब आप कोई आदमी काम करता है और उसका इंटरव्यू आता है तो उसमें उत्साह दुगना होता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि ये देखो दिल्ली से आए हैं और हमारा इंटरव्यू लेके गए हैं, तो उसके जोश में और भी ज़्यादा तरक्की होती है। देश की तरक्की में और मोदी जी के विजन और मिशन को लेके जो कार्यकाल में, और जो मोदी नॉमिक्स इन्होंने इसका नाम दिया है वो अच्छा नाम है, क्योंकि कार्यकाल तो वही 2010 से 2014 का है। और अब हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी होगी, और इस पे चर्चा भी हुई, और बहुत सारे मीडिया के लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। वो इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं दिखाएंगे ज़रूर, तो इससे मोदी जी को भी फ़ायदा होगा और बीजेपी पार्टी को भी फायदे लाभ
होने मिल की सकता है। आशंका है। तो थैंक यू वेरी मच Thank सर, you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू सर।